My series will run alongside called Back to Basics. और साथ में मेरी श्रृंखला भी चलेगी जो है बुनियादी बातों पर So लौटना। are you excited? As a church, we've got lot to learn and lot to apply, lot to grow in the Lord. और हमारी एक कलीसिया होने के नाते बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ उपयोग में लाने के लिए है, बहुत कुछ बढ़ने के लिए है। If you don't have basics, don't worry. Lot of things, lot of foundational things will be cleared. और अगर आपकी बुनियादी बातें अभी स्पष्ट नहीं है तो बहुत सारी बुनियादी बातों के बारे में हम बात करेंगे। If you don't know 2 plus 2, how will you be able to solve some of the biggest formulas or on which lot of scientific things stands? और हमें अगर बुनियादी गणित नहीं आती 2 और 2 कितना होता है तो हम और बड़ी इक्वेशन कैसे हल कर सकते हैं। If you don't know A, B, C, D, then how will you be able to make a sentence or stand the whole a write-up or a content that you want to write? अगर आपको ABCD या मामूली अक्षर नहीं आते तो आप कैसे पूरा वाक्य या पूरा पैसेज लिख सकते हैं। So all things comes back to basics. तो सारी चीजें घूम फिर कर बुनियादी बातों पर आती हैं। How is your basics? आपकी बुनियादी बातें कैसी हैं? Maybe you were not good in maths like me. I was not good in maths. और शायद गणित में आप लोग अच्छे ना हो, मेरी तरह मैं गणित में अच्छा नहीं था। I was not good in English. मैं अंग्रेजी में अच्छा नहीं था। My wife still complains that I make mistakes while I'm preaching because she's an English teacher. और क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो एक अंग्रेजी की अध्यापक है, वो हमेशा मुझे बताती है, शिकायत करती है कि मैं कुछ ना कुछ गलती करता हूँ प्रचार करते समय। But praise God that we learn things and we go back to basics and work on our basics and we can do well. और परमेश्वर की महिमा हो कि हम बातें सीख सकते हैं, हम वापस बुनियादी बातों पे जाके नई तरीके से उनको सीख सकते हैं। So this morning's message entitled The Gospel of the Kingdom. और आज के मैसेज का टाइटल है राज्य के सुसमाचार। In 1857, this place called New York was in a turmoil. और 1856 में एक ये जगह है न्यूयॉर्क, वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सब कुछ खराब हो रखा था। What we see with high rises today or a city that is well spoken about was not quite like that. और जिस शहर के बारे में आज बात करते हैं कि वहाँ पे इतना अच्छी चीज़ें हो रही, इतनी प्रगति हुई, वो वैसा तब नहीं था। All of a sudden there was a stock exchange market crash. और वहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया था। And there was unemployment. और वहाँ पे कोई भी रोजगार नहीं था। 30,000 men on street were queuing up for jobs. और 30,000 लगभग लोग सड़कों पे नौकरियां ढूंढ रहे थे। Some pictures will help us to grasp what was the reality there. और कुछ जो दृश्य है वो हमें बताएंगे कि वहाँ की सच्चाई थी क्या। There were men holding boards saying, can you give me jobs? I am been jobless for 7 years. और कुछ लोग हाथ में बोर्ड लेके खड़े थे कि मैं 7 साल से बेरोजगार हूँ, क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। And the New York was growing because lot of people were flooding from Scotland and England. They were coming to look for jobs. और वहाँ की जो तादाद है बढ़ती जा रही थी क्योंकि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से लोग वहाँ पर नौकरियों के लिए आ रहे थे। And so there grew slavery, and because of stress, no job, there was all sorts of situation arose from that place. वहाँ पे गुलामी बढ़ गई और क्योंकि वहाँ पे नौकरियाँ नहीं थी इसलिए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ बदली वहाँ पे। People began to live in wherever they found place, they began to make houses. और जो लोगों को जहाँ जगह मिलता था वहाँ पे वो घर बनाना शुरू कर दिए थे। Which created slum communities. और इसलिए वहाँ पे सारी स्लम कम्युनिटी आ गई। Can you believe this was New York? और आप क्या विश्वास करते थे ये न्यूयॉर्क था? This shows us like very familiar to us. और शायद ये तो हमारे देश जैसा ही लग रहा है। But then because of joblessness, there grew real issues where children became homeless and they began to sit on streets. Almost 30,000 children were also on the street. और बेरोजगारी के कारण जो छोटे बच्चे थे वो भी बेघर हो गए और कम से कम 30,000 बच्चे सड़कों पर थे। Women come out on the street. और औरतें सड़कों पर थीं। Amongst these children, there were many young girls and women began to go for prostitution so that they can have living.
और कई ऐसी औरतें थी जो नौकरी ना होने के कारण वेश्या होने की व्यवस्था में चली गईं। Now, because there was no jobs and men were stressed, they began to drink lot of alcohol and lot of addictions. और बहुत सारे लोग जिनको नौकरियां नहीं थी, पुरुष लोग बहुत ज़्यादा पीने लगे और शराब की लत में पड़ गए। You see, their hope was in a materialistic world, and now because of their hope had crashed, they became hopeless. There was no hope. और जो उनका आशा थी वो सारी दुनियावी चीज़ों में थी, और क्योंकि वो दुनिया में तहस नहस चीज़ें हो रही थी, इस वजह से उनकी आशा खत्म हो चुकी थी। Suicide rates began to increase. और आत्महत्या के तादाद बढ़ने लगी। It was in this time God moved most, surprising way. और फिर परमेश्वर ने बहुत ही अचंभित रूप से वहाँ पे कार्य करना शुरू किया। There was a church called Dutch Reformed Church. और वहाँ पे एक कलीसिया थी जिसका नाम था डच रिफॉर्म चर्च। Now, why Dutch church in New York? और क्यों एक डच कलीसिया है, वो भी न्यूयॉर्क में? Because New York was not used to be known as New York, it was used to be known as New Amsterdam. क्योंकि न्यूयॉर्क का नाम न्यूयॉर्क नहीं था उस समय उस जगह का नाम था न्यू एम्स्टरडैम। It was later it became New York. और फिर बाद में उसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया। This church was closing down. और ये कलीसिया बंद होने वाली थी। Dutch Reformed Church, because of so much crime started taking place, the church started to look for their comfort, so they ran away to some better place. और क्योंकि वहाँ पे जुर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था, वो लोग एक आराम की जगह चाहते थे, इसलिए वो बेहतर जगह पे जाने को तैयार हो गए। But there was one man, in fact, priest, all the clergies, all the leadership of the church also ran away. But there was a one businessman in this church. और जो उस कलीसिया का अगवा था और बाकी सारे अगवे थे वो भी बाहर चले गए, पर सिर्फ एक व्यक्ति था उस कलीसिया का जो बचा। He ran successful business. और उसका जो व्यवसाय था बहुत ही ज़्यादा सफल था। His business also must have crashed. और शायद उसका व्यवसाय भी पूरी तरीके से खत्म हो गया हो। But he had found his hope in Jesus. पर उसने अपनी आशा को मसीह में पाया। He wanted to do something different. वो कुछ अलग करना चाहता था। His name is Jeremiah Lanphier. और उसका नाम है जेरेमाया लैनफीर, who brought or who was successful to initiate a revival known as layman's revival. और एक बेदारी लाने में वो असफल हुए जिसका नाम था लेमेंस रिवाइवल। What happens in revival? और जब बेदारी आती है तो क्या होता है? What did this one man could do that changed the whole a nation and also the nations of the world? और ऐसी क्या चीज़ उसने करी कि उसने उस राष्ट्र की और शायद दुनिया के और जगहों की हालत बदल दी? When church was closing down, he was pleading people to come to church, but people were not interested to come to church. जब वो कलीसिया बंद हो रही थी, वो लोगों से विनती कर रहा था कि वो कलीसिया में है, पर लोग आने को तैयार नहीं थे। Things were well. They didn't think that they needed hope. और सब कुछ ठीक था, उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें आशा की जरूरत भी है। It speaks of sometimes like our situation. और कई बार ये हमारी जैसी परिस्थिति के जैसा ही लगता है। And because he went around giving tracts for people to come to church, nobody showed up in the church. और वो जाके सुसमाचार को बांटते थे, फिर भी लोग नहीं आते थे But कलीसिया। when everything crashed, पर जब सब कुछ तहस नहस हो गया, he again tried. उसने फिर से कोशिश की। He was unsuccessful before, but he again tried. He printed tracts for a prayer meeting that is going to take place on 23rd September of 1857. उसने पहले भी कोशिश की पर वो असफल रहा, पर इस बार फिर उसने सुसमाचार छपवाए और उसने एक मीटिंग रखी जो थी 20 सितंबर को। He spread these tracts. और उसने सुसमाचार बांटा। He was in the church building. और वो कलीसिया की उस इमारत में था। He was invited people for prayer meeting. और उसने लोगों को उस प्रार्थना सभा के लिए निमंत्रण दिया था। Any guess how many people came? और आप सोच सकते हैं कितने लोग आए? One. Any guess? और कोई? Not even one. एक भी व्यक्ति नहीं आया। Not even one. एक भी व्यक्ति नहीं आया। Nobody turned up. कोई भी नहीं आया। 1 week went by. और एक हफ्ता गुजर गया।
He faithfully was praying in that church. और वो विश्वास योग्यता से उस कलीसिया में He प्रार्थना कर रहा knelt था। down on his knees and said, Lord, we have sinned against you. वो अपने घुटनों पे आया, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर हमने आपके विरुद्ध पाप किया है You know you are a good God. और आप एक भले परमेश्वर हैं We know that you would never allow certain things. और हम जानते हैं कि ऐसी कई चीज़ें जिनकी अनुमति आप नहीं देंगे। After a week, 6 men showed up. और एक हफ्ते बाद 6 लोग आए These were the 6 people started to pray with him. और ये वो 6 लोग हैं जिसने उसके साथ प्रार्थना करना शुरू किया Prayer meeting continued. और वो प्रार्थना सभा चलती रही। What one man can do, right? एक व्यक्ति क्या कर सकता है, हाँ? What 6 men can do, right? और 6 लोग क्या कर सकते हैं? That prayer meeting started to flood like anything. 10,000 people started joining और in that धीरे धीरे prayer वो meeting. प्रार्थना सभा, इतने सारे लोग आ गए, कम से कम 10,000 लोग उस प्रार्थना सभा में आए। Now, if you are a Christian, you know that if you do a worship concert, people will flood, but not for prayer meeting. और आप जानते एक मसीह होने के नाते अगर हम एक वर्शिप कॉन्सर्ट करते तो बहुत सारे लोग आएंगे, पर प्रार्थना सभा में कोई नहीं आता। People started flooding as the presence of God fell upon this place as they were gathering. और जैसे ही वो लोग मिल रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति इतनी मजबूत रूप से उनके ऊपर आएगी, कम से कम 10,000 लोग वहां पर आ गए। You know what started to take place in that revival? और आपको पता है उस बेदारी में क्या होने लगा? Businessmen started confessing that they were cheating people. वो वहाँ के जो व्यवसाय करने वाले लोग थे, उनने पश्चाताप करना चालू किया कि वो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। They realized the judgment of God had fell on them, and if they don't repent, they don't turn back, they don't confess, their business will never stand. और उन्होंने इस बात को माना कि परमेश्वर का न्याय उनके बीच में आ गया और अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने पापों को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर का न्याय उनके बीच में कार्य करेगा। There became a prayer, from the people. I have sinned, I have sinned, I have sinned. और लोगों के बीच में से एक प्रार्थना उठने लगी कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। No message was preached to convict to people और ना ही कोई ऐसा संदेश बांटा गया कि लोग पश्चाताप करने आए, because Holy Spirit convicts people. क्योंकि पवित्र आत्मा ने लोगों के अंदर वो बात को डाला। Their hearts were cut, like if you remember the first revival in the book of Acts. और उनके जो हृदय थे वो छेदे गए, भेद दिए गए, जैसे आपको याद होगा पहली बेदारी जो हमने देखी थी पहली They said, कलीसिया I में। am a sinner, I need saving. वो कह रहे थे कि मैं एक पापी हूँ और मुझे बचाए जाने की जरूरत है। Lot of things started to take place. और बहुत सारी चीजें होने लगी They started meeting 3 times every day. और वो हर दिन 3 बार मिलते थे In lunchtime, they would meet for precise 1 hour. और वो जो लंच का टाइम होता था वहाँ वो 1 घंटे के लिए मिलते थे। There was a newspaper called New York Press, now known as New York Times. और एक न्यूज़पेपर था जो न्यूयॉर्क प्रेस कराया था जो इस समय पे न्यूयॉर्क टाइम्स कहलाता है। Wrote revival sweeps the country. और वो कहता है कि बेदारी ने पूरी राष्ट्र को ढांप लिया The है। editor of the newspaper saw from the building everyone, or whoever at least had a job, would run in this lunch hour. और वो अपनी इमारत से देखते थे कि वो 1 घंटा जो लंच टाइम होता है सारे लोग अपनी नौकरियों से उस तरफ भागते थे। They knew what is it to be on time. उन्हें पता था कि समय पे होना क्या होता है। They rushed. 15,000 people were meeting in one place. और 15,000 लोग एक जगह पर मिल रहे For थे 1 hour they would pray. और वो 1 घंटे के लिए प्रार्थना करते थे। We must have thought that where revival is just like continuous. No, they were faithfully meeting 3 times a day. Nobody had to be told you have to come to this meeting. और हमें लगता है कि बेदारी लगातार होती है, पर वो दिन में 3 बार मिल रहे थे और उन्हें कोई बुला नहीं रहा था या कह नहीं रहा था कि आपको आना पड़ेगा। People think that revival is chaos or orderless. और लोगों को लगता है जब बेदारी आती है तो हर जगह हर चीज़ उथल पुथल हो जाती है। Lanphier gave an order saying 3 minutes anyone can shout out in prayer. और लैनफील्ड ने कहा कि जो 3 मिनट है कोई भी दिन में प्रार्थना कर सकता है चिल्लाकर। In the beginning 5 or 8 or 10 minutes songs will be sang. और पहले शुरुआत के 5 और 10 मिनट गीत गाए जाएंगे। Parents would pray saying, praying for my son who is addicted. और जो माता पिता है वो प्रार्थना करते थे अपने बेटा बेटियों के लिए जो लत में थे। The son could hear, this is my parents' cry. And son would say, here I am, my mom and dad.
और माता पिता के जो पुत्र था वो सुन सकता था उसके माता पिता कर रहे हैं और वो हाथ उठा के कहता मैं यहाँ पर हूँ I am giving up on drugs और मैं अपनी लत को छोड़ रहा हूँ because it cannot give me permanent hope. क्योंकि वो मुझे हमेशा की आशा नहीं दे सकता। Sons were meeting with God. और जो बेटे थे वो अपने पिता से वापस मिलाप कर पा रहे थे। Do you know most interesting part? और आपको पता है सबसे दिलचस्प चीज़, So many people gathering, there should be order, right? और इतने सारे लोग मिल रहे हैं तो एक ऑर्डर होना चाहिए, Because if God is doing something, He'll do it with order. क्योंकि अगर परमेश्वर कुछ करता है तो वो एक व्यवस्था के साथ करता है। The policemen were losing jobs जो पुलिस के लोग थे वो अपनी नौकरियों को खो रहे थे because there was no crime. क्योंकि वहाँ पर कोई जुर्म ही नहीं था। Can you believe it? क्या आप इस बात का विश्वास कर सकते The हैं? towns were transforming. जो शहर थे वो बदलते जा रहे थे Towns no longer needed any policemen. और उन शहरों में कोई ज़रूरत नहीं थी पुलिस वालों की। If you said it, nobody can gather it after 10 o'clock. Everyone said we will not gather. अगर आप ये कहते कि 10 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा तो कोई 10 बजे के बाहर नहीं आता Now, था। because this newspaper editor decided to go and find out where these people are running to, he went to few places. He said, I can't go to every places, but almost more than 15,000 people are gathering in these prayer और meetings. वो एडिटर जो उस अखबार को छाप रहा था उससे देखना था कि क्या हो रहा है, तो वो कुछ जगह पे गया, वो सारी जगह नहीं जा सकता था क्योंकि 15,000 लोग मिल रहे थे People confessed that they cheated people. और पर लोग अपने पापों को मान रहे थे कि उन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की The है। awe and wonder of God, the reverence for God, the fear for God, and salvation of God was in that place. परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का वो अद्भुत उपस्थिति उनके बीच में थी। Not only that, actors and actresses started to go to these meetings. और बल्कि यही नहीं, बल्कि जो अभिनेता और अभिनेत्रियां थी वो तक उन सभाओं में जाने लगी। Those days, sports boxing over there was very familiar, and this boxer named Gardner also went to this meeting and he got saved. और जो लोग खेलते थे, जो क्या कहते हैं स्पोर्ट्समैन थे, उनमें से एक का नाम गार्डनर है, वो उस सभा में जाने लगे। If the revival breaks out in India, in Uttarakhand, what will it be like? अगर वो बेदारी हमारे देश में आ जाए, अगर वो हमारे उत्तराखंड में शुरू हो जाए तो क्या होगा? Let me give you some statistic. और मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूंगा। India's unemployment is highly notable than ever before right now in last 15 years. और भारत में जो बेरोजगारी है वो सबसे ज़्यादा है आज तक के इतिहास में। In Uttarakhand, there was a position for 24 home guards. Guess how many applications were applied or how many went for interview? और हमारे उत्तराखंड में 24 होम गार्ड्स के लिए नौकरी की जगह खाली थी और सोचे कितनी एप्लीकेशन आए और कितनों को नौकरी मिली। 21,000 application and people went for interview. कम से कम 21,000 लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जमा की और इंटरव्यू के It लिए। is said that 70% of these applications were graduates from degree. They just wanted to work in home guard. और कह रहे हैं 70% लोग उसमें से ग्रेजुएट थे, उनके पास डिग्रियां थी और वो एक होम गार्ड की नौकरी चाहते थे। In Uttarakhand, 867 rapes, highest in Himalayan states, has been recorded. और उत्तराखंड में कम से कम 866 बलात्कार रिकॉर्ड हुए हैं जो सबसे ज़्यादा हिमालयन स्टेट में। Himalayan states include Himachal Pradesh, और हिमाचल प्रदेश को अगर हम गिनेंगे उसमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड Jammu में and है। Kashmir. और जम्मू कश्मीर को मिलाकर सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में है। This is our Uttarakhand. ये हमारे उत्तराखंड की हालत है। 208 murder cases, highest amongst Himalayan states. और 208 मर्डर के केसेस हैं, हत्या के केसेस हैं जो सबसे ज़्यादा हिमालयन स्टेट्स के बीच में। Can one man do anything? क्या एक व्यक्ति कुछ बदल सकता है? Surely, like Jeremiah Lanphier, who was a businessman who had lost everything, but he had one thing, Jesus with him. शायद जेरमाया लैनफियर जैसा कोई व्यक्ति जिसने अपना व्यवसाय, अपना सब कुछ खो दिया, पर उसके पास एक आशा थी और वो थी यीशु मसीह। In justice and safety, India's position in the world is 66th. और जब न्याय और सुरक्षा की बात आती है तो हमारा भारत 66 जगह पे है। One IPS officer's interview I watched, he said, 1 out of 20 cases get registered. और मैंने एक IPS का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि एक में से 20 केस रजिस्टर होते हैं।
19 don't get even registered. तो 20 में से एक का रजिस्टर होता है, यानी कि 19 केस रजिस्टर तक नहीं होते And हैं। even that one is registered, we know what happens to that. और जो एक जो रजिस्टर होता है हमें पता है उसमें भी कितना ही न्याय मिलता है। Imagine one incident of doctor being raped, RG Kaur was registered. No news until now in our justice system. और एक डॉक्टर थी जो आरजीकर हॉस्पिटल में जिनका बलात्कार हुआ और अभी तक हमारे न्याय व्यवस्था की ओर से कोई जवाब नहीं आया। 19 of them do not even come out. और उनमें से शायद 19 हैं जो बाहर तक नहीं आते हैं। Who will change this nation? कौन बदलेगा इस राष्ट्र को? Who will be like Jeremiah Lanphier? कौन बनेगा जेरेमाया लैंडफियर जैसा? Who will stand in the gap and pray? कौन उस मध्यस्थता में खड़े होकर प्रार्थना करेगा? At least one person raised hand and said, I will. शायद एक व्यक्ति हाथ उठा के बोले मैं प्रार्थना करूंगा। Sometimes we think one person, what can we do? और हम सोचते हैं हम शायद एक ही व्यक्ति हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? Do you know, we as ADC Church are promised that we will be the bringer, or we will experience revival. और आपको पता है कि एडीसी कलीसिया होने के नाते हमारे ऊपर बोला गया है कि हम बेदारी को लेकर आएंगे। When the real revival takes place, hearts begins to transform. जब सच्ची बेदारी आती है तो हृदय बदलने लग जाते हैं The fear of God begins to arise. और परमेश्वर का भय हृदयों में आने लगता है। Unethical becomes right with God. और जो अनैतिक चीज़ें हैं वो परमेश्वर के साथ सही होने लग जाती हैं। Sometimes we think that God has left us on our own and we are just left out. और कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर हमें हमारे ही ऊपर छोड़ दिया है। This morning I want to propose to you that God is fully interested and He wants to show you what is He doing, what has He done, what will He be doing in days to और come. आज मैं बुलाहट देना चाहता हूँ परमेश्वर की ओर से आपको कि परमेश्वर ने आज तक क्या किया है, वो क्या कर रहा है और वो क्या करने वाला है। So the title of my message is Gospel of the Kingdom. और आज का मेरा जो शीर्षक है वो है राज्य का सुसमाचार। Before even I say that, we have a promise of revival. और इससे पहले मैं बोलूँ भी हमारे ऊपर एक वादा है बेदारी आने का। But revival just doesn't come like that. और बेदारी यूं ही नहीं आ जाती है। God needs faithful men and women परमेश्वर को विश्वास योग्य पुरुष और स्त्रियां चाहिए who would humble themselves and pray, जो अपने आप को दीन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, who would yield to God, जो परमेश्वर को अपने आप को देंगे, who would seek Him, जो उसको खोजेंगे, who would crave for Him more. जो उसके लिए भूखे होंगे। It is in that place, and I pray that ADC becomes those men and women. और ये तब आएगा और मैं प्रार्थना करता हूँ कि एडीसी वो पुरुष और स्त्रियां बने। What's the name of our church? हमारी कलीसिया का नाम क्या है? Is Awaken. वो है अवेकन The डूम word कम्युनिटी। awaken, it means spiritual awakening. और यहाँ पे अवेकन का अर्थ है जो आत्मिक जागृति है। Since it's a new name, I will be keep on reiterating to you, all of us. और क्योंकि ये नए नाम है मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा। Are we awakened? क्या हम जागृत हैं? It is the name awaken used 5 times in the Bible, and there is a slide about that. The 5th time which is used for believers. The 4th time Jesus is used for Himself. और यहाँ पे 5 बार इस शब्द का उपयोग हुआ है वचन में। जो 4 बार हुआ, एक बार आखिर में हुआ है वो कलीसिया के लिए हुआ है, उसके विश्वासियों के लिए, पर 4 बार यीशु मसीह के लिए हुआ है। Sorry, it's small, but the Greek word is there. It's called egrethenai. और जो ग्रीक वर्ड है उसको कहेंगे एग्रिफेनाई। Occurrence 5 times. और ये 5 बार आता है। The same word means to arise. और जो इसी शब्द का मतलब है फिर से उठ खड़े होना, उसका अर्थ है। And Jesus said, I will arise after 3 days. और यीशु मसीह कहते हैं मैं जी उठूंगा 3 दिन के बाद। I will rise. मैं फिर जी उठूंगा। A sun gets awakened. और जो सूरज है वो फिर से उगता है। Jesus used 4 times. और यीशु मसीह ने उसे 4 बार इस्तेमाल किया। But after I have been raised, I will go ahead of you. और वो कहता है जब मैं जी उठूंगा मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा। In 3 days, I will be raised up. और मैं 3 दिनों में जी उठूंगा। And last one, which we use in Romans chapter 13, there's a verse after this slide. और जो आखिरी है जो हम रोमियो 13:11 में इस्तेमाल करते हैं, It speaks about spiritual awakening वो बात करता है आत्मिक जागृति की, for a believer. वो भी एक विश्वासी के जीवन में।
It starts with, and do this. और वो इससे शुरू होता है कि ऐसा करो। There are things, scripture says, do this and don't do this. और वचन में कई ऐसी बातें जो कहती है ऐसा करो और ऐसा नहीं करो। If you want to find out what is scripture saying, do this, go read a passage before this. और अगर आपको जानना है कि क्या करने के लिए वचन कहता है, आप इससे पहले वाले पैसेज को पढ़ सकते हैं। Speaking about love one another. जो बात करता है एक दूसरे से प्रेम रखें, Speaking about give yourself for one another. अपने आप को दे दें एक दूसरे के लिए। Speaking about an environment, if we had that, we will be, far ahead. और एक ऐसे वातावरण का वर्णन करता है कि अगर हम उसमें हो तो हम बहुत But आगे होंगे। after this, don't do this. फिर वो होता है कि आप क्या ना करें, Don't cheat one another. एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी ना Don't take करें, advantage of one एक another. दूसरे का फायदा ना उठाएं Don't sin against God. और परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। There are a lot of things after that. और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। But this is where I felt the scripture I got from and the name change happened. और यह इस ही वचन से मुझे हमारी कलीसिया का नाम मिला और हमने नाम बदला। Do this knowing the time, in fact, that now it is a high time to awaken out of sleep. और कहते हैं समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। As believers do go to sleep. और क्योंकि ऐसा है कि विश्वासी नींद में चले जाते हैं। Sleep here is a negative connotation. और यहाँ पे नींद का मतलब है, ये एक नकारात्मक शब्द है वो इस्तेमाल है। We must have been spiritually awake, शायद हम आत्मिक रूप से जागृत थे, but sometimes we go to a sleep. पर कई बार हम नींद में चले जाते हैं। Sometimes someone comes and puts us to sleep, कभी कभी कोई आता है और हमें नींद में डाल देता है, but we are to be awakened. पर हमें जाग उठने की जरूरत It's है। high time now. और ये समय आ पहुंचा है अब। I just gave you a few statistics. You can find the news yourself, what is happening in our nation. और आपको मैंने कुछ ही स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, आप देख सकते हैं न्यूज़ में कि क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। For now, our salvation is nearer. क्योंकि अब हमारा उद्धार बिल्कुल हमारे करीब आ पहुंचा है। Do you know we are so close to Jesus is coming? क्या आपको पता है हम यीशु मसीह के आगमन के कितने करीब हैं? There were some amazing prophets who prophesied even about our day. और एक बहुत ही अद्भुत भविष्यवक्ता है जिन्होंने हमारे समय के बारे में भी भविष्यवाणी की। You know, one man I love the most, and I watch his every word coming out of his mouth is like a gold. और मैं एक व्यक्ति जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रेम है उनसे, और उनके शब्द मुंह से हर एक शब्द सोने के समान है जो निकलता है। His name is John Paul Jackson. उनका नाम है जॉन पॉल जैक्सन। He used to come to India, और वो भारत आया करते थे, and he prophesied so many things before. और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की भविष्यवाणी करी है पहले। And he said the end times are coming, और उन्होंने बोला है कि अंत का समय आ रहा है, and God showed him messages or things that are going to come. और परमेश्वर ने उन्हें संदेश दिए, चीज़ें दिखाई जो होने वाली हैं। And it came like newspaper headings. और वो बिल्कुल न्यूज़पेपर हेडिंग की तरह उनके सामने आते थे। You know, few things which has already happened, let me highlight. और कुछ चीज़ें जो अभी तक हो चुकी हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। In 2008, he was prophesying this. उन्होंने 2008 में ये भविष्यवाणी की थी। He said, I see pandemics will come. उन्होंने कहा मैंने देखा है कि अकाल आएंगे। You see, we want revival, but what will get us to revival? What we will have to go through for us to see the revival? बेदारी आएगी, पर वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें गुजर के जाना पड़ेगा उस बेदारी को देखने के लिए। If we are not awakened, if we are not spiritually active, if we are not spiritually praying, we have a lot to go through in these times. और अगर आप जागृत नहीं हैं, अगर आप आत्मिक रूप से जागे हुए नहीं हैं, तो आप नहीं सोच सकते आपको किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा इन समयों में। He said 2 pandemics will come. उन्होंने कहा कि 2 पैंडेमिक आएंगे, The first one will be only scare. और पहला सिर्फ डराने के लिए होगा। Was not there so much scare in 2020? क्या हमें याद है 2020 में लोग कितने डरे हुए थे? Did we not ever since became so scared about health? और कोई अपने स्वास्थ्य के बारे में इतनी चिंता नहीं करता था जितना उस समय करने लगे थे। And now everywhere you see people wearing masks. और अब आप हर जगह देखते हैं लोग मास्क पहन के घूमते हैं। You see, when we have life, we don't appreciate certain things. जब हमारे पास जीवन होता है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम कोई मूल्य नहीं समझते, And then the very things get shaken. और फिर वही चीज़ें बिल्कुल डोल जाती हैं हमारे जीवन में, All of a sudden we woke up. और फिर अचानक से हम जाग उठते हैं। See, sometimes God takes these things
as to bring your attention, saying, "Here I am. Are you not seeing? Are you not listening to what I'm saying?" और ऐसी चीजें परमेश्वर करता है कि लोगों का जो ध्यान है उसकी तरफ केंद्रित हो कि क्या तुम मुझे देख नहीं सकते, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते। And so, second pandemic will be even more dangerous. और जो दूसरा जो पैंडेमिक आने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। You see, first one happened 2008. He prophesied. और उन्हें 2008 में ये भविष्यवाणी करी थी और वो 2020 में पहला आया। You know what's another thing he prophesied? आपको पता है दूसरी चीज जो उन्होंने भविष्यवाणी की, He says there will come a time where gay and lesbianism will increase. और ऐसा एक समय आएगा जो समान लिंग के लोग हैं वो बढ़ते जाएंगे। And he said he even saw a man carrying a baby because of uterus transplant. उन्होंने कहा कि मैंने एक पुरुष को देखा जो एक बच्चे को जन्म देने वाला है क्योंकि उसने अपना यूट्रस का ट्रांसप्लांट करवाया था। Do you know where that took place? आपको पता है ये चीज कहाँ पर हुई? It happened in Kerala, वो चीज केरला में हुई, in our nation. हमारे देश के अंदर। A man literally carried a baby. एक पुरुष है जो गर्भवती हुआ। Are we not in the end times? क्या हम अंत के समय में नहीं हैं? Are we not at the high time? क्या हम सबसे उस समय के करीब नहीं हैं? That this is the time to be awakened. ये कि ये वो समय है कि आप जागृत हों That you are not in a mere religion और आप सिर्फ एक धर्म में नहीं हैं called Christianity, जिसको हम ईसाईयत बोलते हैं, but a true life-giving relationship पर with एक God. सच्चा जीवन देने वाले रिश्ते में हैं हम परमेश्वर के साथ। That if you partner with Him, you will be a source of blessings. कि अगर आप उसके साथ साझेदारी रखेंगे तो आप आशीष का एक स्रोत बनेंगे। There are basics that Christians believe that we will look at in और today's कुछ message. बुनियादी बातें हैं जो मसीह लोग विश्वास करते हैं जो हम आज के मैसेज में देखेंगे। First foremost, it's not a man-made thing. It's God who has made it very clear from scriptures. और ये कोई मनुष्य की बताई हुई बात नहीं है बल्कि ये परमेश्वर की ओर से है जो साफ साफ उसके वचन में दी गई हैं। You see, things are coming that is going to get more difficult and more difficult. But the true ones, the sons of the kingdom, will thrive, will survive, will go through, all this and experience the revival. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, बहुत सारी गड़बड़, पर जो परमेश्वर के सच्चे पुत्र और पुत्रियां हैं वो उन सब में से निकल पाएंगे। Now it's the time our salvation is nearer than when we first believed. और इस समय है कि हमारे विचार से अब हमारा उद्धार और ज़्यादा निकट है। 26 July 2025, it will be 20 years, 2 decades for Pankaj Bhagwane to follow Jesus. और 26 जुलाई 2025 में 20 साल हो जाएंगे पंकज भगवाने को परमेश्वर को जाने हुए। That's me. और वो मैं हूँ। Just in case you're wondering which historian we missed this. कहीं आप सोच रहे पता नहीं कौन इतिहास लिखने वाला है ये। 2005 I started following Jesus. 2005 में मैंने मसीह के पीछे चलना शुरू किया था। And I am never been disappointed. और उसके बाद मैं कभी निराश नहीं हुआ हूँ। He is a God who speaks clearly to me. और वो एक ऐसा परमेश्वर जो साफ साफ मुझसे बात करता He है speaks very clear. और वो बहुत स्पष्टता से मुझसे He बात करता still है speaks to me. और वो आज तक मुझसे बात He करता है। still shows my heart वो अभी भी मुझे मेरा हृदय and दिखाता how है much I need Him. और मुझे उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। It is time for our salvation. और ये समय है हमारे उद्धार का। Then first we believed. उस समय से जब हमने पहले विश्वास किया था, 2005 I believe, but it is even high time now मैंने 2005 में विश्वास किया था, पर अब वो समय और ज़्यादा निकट आ पहुंचा है to hold fast for my salvation. कि मैं अपने उद्धार को और जोर से पकड़ लूं। Do you know what is Scripture saying? आपको पता है वचन क्या कहता है? This is our name, Awaken Dune Community. I hope you get wake up. और मैं आशा रखता हूँ हमारी कलीसिया का जो नाम है हम भी जाग उठें। If I ask you what is the name of our church, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी कलीसिया का नाम क्या है, Awaken Dune वो Community. है अवेकन। Which verse do we get this name from? और ये हमें किस वचन से मिलता है? Romans 13:11. वो है रोमियो 13 उसका 11 से। You see, we are awakened, so we will wake others also. Come on. अगर हम जगे हुए हैं तो हम दूसरों को भी जगा देंगे। चलो उठ जाओ। Can you wake someone next to you? क्या आप किसी को उठा सकते हैं अपने बराबर में? Hello, good morning. गुड मॉर्निंग।
I can't believe I have not even started my message. और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अभी समाचार शुरू भी नहीं किया है, This Abhishek gives me tough time. क्योंकि अभिषेक मुझे बहुत मुश्किल समय देता There's है so much for me to do, and I have to do my series as well. और मुझे बहुत कुछ बोलना है, मुझे ये श्रृंखला भी करनी है। But if I want to give this direction to church, पर अगर मैं ये निर्देशन अपनी कलीसिया को देना चाहता हूँ, these are the beginning times. ये वो समय है। Our vision is can you put another slide? हमारा जो दर्शन है, क्या आप वो देख सकते हैं? Bringing life awakening by discipling nations. राष्ट्र को शिष्य बनाकर जीवन जागृति लाना। To wake someone up spiritually, you need discipleship. और किसी को आत्मिक रूप से जागृत करने के लिए हमें उनका चेला बनाना बहुत Because some जरूरी है, people tend to go back to sleep time and time again. क्योंकि कई लोग वापस नींद में चले जाते हैं। Okay, remember this vision. और आप इस दर्शन को याद रखें। What's our mission? और हमारा उद्देश्य क्या है? Is reach up, reach in, reach out. ऊपर की ओर बढ़ना, अंदर की ओर बढ़ना और बाहर की ओर बढ़ना। What's the next slide? Sorry, I have it also. Well, let's just quickly read this scripture. Maybe we will come back again next week. और हम जल्दी से इस वचन को पढ़ेंगे और अगले सप्ताह हम वापस उसमें आएंगे। Jesus gave parables after parable to explain to us what happened, what is he doing, and what is it going to take place in days to come. और यीशु मसीह दृष्टांत पर दृष्टांत देते थे बताने के लिए कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होगा। So someone open Matthew 13 verse 24-30. Just read it loudly in Hindi. और कोई हिंदी में मत्ती 13 उसका 24 से 30 पढ़ सकता है The जोर से, English one can follow it very quickly. और अंग्रेजी वाले सुन सकते हैं उनको। 2 words you read and then give a break, and 2 words and 2 words. 2 और words. आप दो वचन पढ़ सकते हैं। Just like as it is, first 24 to 26. Can you read first? कोई 24 और 26 पढ़ सकता है पहले Hindi में. हिंदी में। Okay. Loudly. Next 27. 26। Verse 28. Yeah. Jesus said this parable. और यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया। You followed. There were 2, sowers. और आप देखते हैं यहाँ पे 2 बीज बोने वाले हैं। First of all, let's look at the context in which Jesus is saying these parables. और हम पहले वो संदर्भ देखेंगे जिसमें परमेश्वर इस You दृष्टांत see, को दे there रहा are है। people who are not interested in seeking God and seeking truth, so they will not find it, the obvious one. और जो लोग दिलचस्पी नहीं रखते परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर के राज्य को खोजने में, वो उसे पा भी नहीं पाएंगे। As if there is a veil or there is a cover on their head, they can't see. जैसे कोई पर्दा उनके आंखों के सामने, वो देख ही नहीं पाते। It's little bit like Joseph's brother. Joseph is speaking before them, but they can't recognize that he is Joseph. ये ऐसा था जैसे यूसुफ के भाइयों की तरह, कि यूसुफ का भाई उनके सामने उनसे बात कर रहा था, पर वो अपने भाई को पहचान ही नहीं पा रहे थे, Because there was a veil. क्योंकि उनकी आंखों पर एक पर्दा था। In the same way, there are people who are not going to be seekers or finding God, so they will not find him.
और ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर और उसके राज्य को नहीं खोजना चाहेंगे और वो खोज भी नहीं पाएंगे। But Christ is very easy to be found. पर यीशु मसीह बहुत आसानी से मिल जाता है। But because they are not seeking, they are not digging deep, और क्योंकि वो खोज नहीं रहे हैं, वो और ज़्यादा खोद नहीं रहे हैं, they are not able to get it. वो उसे पा नहीं पाते। You know, Jesus often used the parables. और यीशु मसीह अक्सर दृष्टांत में बातें He करते made थे। it very simple and plain, but people were not getting it. उन्होंने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बोला, पर फिर भी लोग समझ नहीं पाते। You see, the scripture said, because the knowledge of the secret and the secrets of the kingdom has been given to you, but not to them. वो कहता है जो परमेश्वर के राज्य के और परमेश्वर के रहस्य हैं दिए गए हैं, वो तुमको दिए गए हैं। Is to given to those who seek him. वो उनको दिए गए हैं जो उसे खोजते हैं। Is given to those who wants to know what God is doing. वो उनको दिए गए हैं जो जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है। But those who just take the cover of religion, they will be coming and going, but they will still not find it. पर वो लोग जो एक धर्म का ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, वो आएंगे और जाएंगे और सत्य को नहीं पा पाएंगे। Disciples were so interested to find what is God is saying. और जो चेले थे वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे कि परमेश्वर कहना क्या चाहता Not है। only wanting to hear what he is saying, but what can we apply it? वो ना ही सिर्फ ये सुनना चाहते थे कि वो क्या कह रहे हैं, वो जानना चाहते कि हम इसे उपयोग कैसे मिला कर सकते They हैं। knew Jesus holds the word of life. वो जानते थे कि यीशु मसीह के पास जीवन का वचन है। Jesus is the Lord who has word for life. यीशु मसीह वो है जिसके पास वचन है जीवन का। You can read it in the context 13:11 to 15. Even he said it. If those who hear this and those who find it, they will save themselves. They will turn and they will save themselves. वो 11 से 15 में इसी बात को बोलता है कि जो उसकी सुनेंगे और उसको पा लेंगे वो अपने आप को बचा लेंगे। And this is what happens. और ये आगे होता है। Through these parables, God is giving some, deep truths. और इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर एक बहुत ही गहरे सत्य को बताना चाहता था, Which applies basics to Christianity. और जो बहुत ही बुनियादी तौर से हमारी मसीहत में है। Jesus himself explained the parable. और यीशु मसीह ने खुद उस दृष्टांत को समझाया। You want to know his explanation? क्या आप यीशु मसीह के उस अर्थ को समझना चाहते हैं? I think Jesus has done far better than me to explain the parable. यीशु मसीह ने मुझसे भी बेहतर तरीके से उस दृष्टांत को So समझाया I है। will look at that. आइए हम उसको देखेंगे। Matthew 13:36 to 43 quickly. और मत्ती 13 उसका 36 से। This time those who are reading in Hindi can follow. और जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं वो सुन सकते हैं, कोई अंग्रेजी में पढ़ सकता It है। says in English, then he left the crowd and went into the house. और वो कहता है कि तब अपने वो भीड़ को छोड़कर अपने घर में आए। You can imagine Jesus coming in the house. आप सोच सकते हैं यीशु मसीह को उस घर में आते हुए। Disciples coming in. फिर चेले आते हैं। I think today's disciples will go in and say, hey, what's there for food? Let me see what is there. आज के चेले अगर आएंगे कहेंगे अरे आज खाने में क्या है, हम देखते हैं। Not so for disciples there. पर वो चेले ऐसे नहीं थे। You see where they went straight to? आपको पता है वो सीधे कहाँ गए? Explain to us. वो जाके कहते हैं हमें समझाइए। We will not eat until we know what you really mean. हम खाना नहीं खाएंगे जब तक आप हमें नहीं बताएंगे इसका अर्थ है क्या। That is what shows the urgency. वो दिखाते हैं उन्हें कितनी जल्दी थी। So disciples told him, explain to us that parable. वो कहता है कि हमें उस दृष्टांत को समझा। I'm glad they asked. अच्छा, मैं खुश हूँ कि उन्होंने We have पूछा an ये। explanation today. आज हमारे पास एक अर्थ है उसका। He answered, the one who sowed the good seed is the Son of Man. और वो कहते हैं उसने उसको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। Secondly, the field of this world is what? The field is the world. और वो कहते हैं जो ये खेत है वो संसार है। And thirdly, the good seed is what? The people of the kingdom. वो कहता है कि अच्छा बीज क्या है, वो है राज्य के संतान। Some translation will say sons of God. वो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो राज्य के लोग थे या राज्य की संतान थे। You see, to become son of God, you don't need to physically be born from God. If you follow God, you are called sons of God. आपको परमेश्वर में से जन्मना नहीं पड़ेगा उसकी संतान बनने के लिए। अगर आप उस पर विश्वास लाते हैं तो आप उसकी So when संतान we हैं। say Jesus is the Son of God, doesn't mean that Jesus has,
father and mother. और जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो हम ये नहीं कहते कि उनकी माता और पिता है। Not like biological birth. जैसा हम विज्ञान में देखते हैं वैसा जन्म नहीं है ये, But Jesus has the father. पर उसके पर यीशु मसीह के पास पिता है। He is a child of God as well. वो भी परमेश्वर की संतान है। You know what? He is the son of God. और आपको पता है वो बेटे हैं Because परमेश्वर he के, follows God. And we know how he follows. और वो क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, और आपको पता है वो कैसे चलते हैं? Wholeheartedly. पूरे मन से। He says the son does not do anything than what father is doing. वो कहता है कि पुत्र एक भी चीज वो नहीं करता जो परमेश्वर की ओर से That's ना what हो, makes him the son of God. और ये चीज उन्हें पुत्र बनाती है परमेश्वर का। The field is the world, the sons are the people, the sons are you and I. और वो कहता है खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है। The weeds are the people of the evil one. और वो कहता है जंगली बीज है, वो दुष्ट की संतान है। The enemy who sowed them is the devil. और कहते जो शत्रु है उसने उसे बोया है और वो शैतान है। The harvest is और जो कटनी है end of the age. वो है जगत का अंत। Are you following? क्या आप समझ रहे हैं? The harvester are और जो काटने वाले हैं the angels. वो है स्वर्गदूत। Therefore, as the weeds are gathered and burned in the fire, और जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, so this part is not said in the parable, by the way. और ये भाग बोला नहीं गया है इस दृष्टांत में, It's, praise God, it's explained here. पर परमेश्वर की महिमाओं के वो यहाँ समझाया गया है That they will be burned into fire. कि वो आग में जलाए जाएंगे, So will it be at the end of this age. और वैसा ही जगत के अंत में होगा। This Son of Man will send out his angels, और मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, and they will gather out of his kingdom और वह उसके राज्य में से सबको all the things that offended, ठोकर खाने के कारणों all those who cause sin, और जो कुकर्म करने वालों हैं and those who practice lawlessness और जो कुकर्म करते हैं will be taken out. उनको इकट्ठा करेगा, They will throw them into blazing furnace, और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, where they will be weeping and gnashing of teeth. जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। The righteous will shine like the sun. और उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, They'll be awakened. वो जागृत हो जाएंगे, And they will be in the kingdom of their Father. और वो अपने पिता के राज्य में होंगे। Whoever has ears, let them hear. कि जिनके कान हैं वह सुन ले। They will be gathered in the barn. वो उस जगह पे इकट्ठे किए जाएंगे, A barn speaks of God's house. और परमेश्वर की जो कटनी की जगह है वो परमेश्वर का घर है। So what do we get there? तो हमें वहाँ क्या मिलता है? Do you know, first of all, 5 truths out of this parable for us, which are basics? जो 5 बुनियादी सत्य हैं इस दृष्टांत में हमारे लिए। First of all, Jesus never gave who is the Son of Man. Have you noticed? यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि जो मनुष्य का पुत्र है वो कौन है। Have you noticed in the explanation? क्या आपने उस एक्सप्लेनेशन में देखा? He just said the sower is Son of Man. वो कहता है जो बीज बोने वाला है वो मनुष्य का पुत्र है। Who is the Son of Man? कौन है मनुष्य का पुत्र? Can you tell me who is the Son of Man? आप बता सकते हैं मनुष्य का पुत्र कौन है? Who is the Son of Man? कौन है मनुष्य का पुत्र? Jesus. यीशु मसीह। This speaks of very much of our time. और ये बहुत कुछ हमारे जो इस समय है उससे हम तुलना कर सकते हैं। Jesus sowed good seeds. Where did he sow? पर यीशु मसीह ने अच्छे बीज बोए, और वो कहाँ बोए? In this world. इस संसार में। You see, first of all, if we want to understand truth about God, the first truth is Jesus is God. और अगर हम इस पहले सत्य को परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो पहला सत्य है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Secondly, God always does good things. और दूसरी बात, परमेश्वर हमें भली चीजें ही करता है। If you have thought that God is not interested in this world, you will be wrong. अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर इस संसार में कोई दिलचस्पी नहीं रखता तो शायद आप गलत हैं। God is the sower and God is also the caretaker.
परमेश्वर बोने वाला भी है और परमेश्वर ख्याल रखने वाला भी है। Do you agree? क्या आप मानते हैं इस बात को? God is the creator and God is also the sustainer. परमेश्वर उसे बनाने वाला भी है, परमेश्वर उसको संभाल के रखने वाला भी In है, fact, God is also the redeemer. और वह वैसे ही परमेश्वर छुड़ाने वाला भी You है। see, He made good things. ये परमेश्वर ने अच्छी चीजें बनाई। Sometimes we think, where is this world heading? Why are we even this world? We become so hopeless. कभी कभी हम अपने इतनी निराशा से भर जाते हैं कि क्यों संसार ऐसा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। If we set our eyes on God, we will always be hopeful. अगर हमारी आंखें परमेश्वर की ओर है तो हम हमेशा आशा से भरे रहेंगे। God always doing good things. परमेश्वर हमेशा अच्छी चीजें कर रहा होता है। Do you know God is a good God? आपको पता है परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, This is a major basic truth you need to get, और ये बहुत बड़ा बुनियादी सत्य है जो आपको जानने की which जरूरत है। will stop you to, derail from your faith. और वो चीज आपको रोकेगी अपने विश्वास से हटने से। God is always good. परमेश्वर हमेशा भला है। Though we may look like, what is God is not doing good, anything good, where is He God? और जब हम देखते हैं परमेश्वर कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, परमेश्वर है कहाँ इस परिस्थिति में? God is always doing good. परमेश्वर हमेशा कुछ अच्छा कर रहा He is होता है। always about goodness. वो हमेशा भलाई के बारे में है। Do you know one thing that stood for me when somebody said, try Jesus? और आपको पता है मेरे लिए एक चीज बहुत ही मुझे अलग लगी जब किसी ने कहा कि यीशु को जान कर देखो, Or try this God. या इस परमेश्वर को जान कर He देखो, will show you His power. वो अपनी सामर्थ तुमको दिखाएगा। And I want to invite you. और मैं तुम्हें निमंत्रण देना चाहता If हूँ, you want to know this God, say, I want to test you. और अगर आप इस परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप कहिए कि मैं आपकी परीक्षा लूंगा। If you do not know Him, अगर आप उसे नहीं जानते you can test Him. आप उसे परख कर देख If सकते you हैं। know Him, we don't need to test Him. अगर हम उसे जानते हैं तो हमें उसे परखने की जरूरत नहीं That है, will be doubting character. वो है शंका करना। But if you don't know Him, पर अगर आप उसे नहीं जानते, someone said, you test Him, and He said, He will show you He is a good God. वो कहता है कि परख कर देखो और वो तुम्हें बताएगा कि वो कितना भला है। That was my beginning. और वो मेरी शुरुआत थी। The gospel of the kingdom जो सुसमाचार है राज्य का, is that God is interested in this lost world and He is doing good. वो हमारा परमेश्वर दिलचस्पी रखता है इसको ये संसार में, और वो भलाई चीज ही कर रहा So है। how did He reveal His goodness to me? तो कैसे उसने अपनी भलाई मुझको दिखाई? Many ways. बहुत तरीकों से। I got saved. I could have easily died. मुझे बचाया, मैं बच गया जबकि मैं मर सकता था। I had lost my life in flood, शायद मैंने अपना जीवन खो दिया होता बाढ़ में, but God saved me. पर परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। You know, this is what John Paul Jackson said. ये चीज जॉल पेल जैक्सन ने बोली। God showed him all that he is doing. परमेश्वर ने उसे दिखाया कि हर चीज जो वो कर रहा है। Many times we are stopped not to go somewhere. कई बार हम एक जगह पे जाना छोड़ देते हैं। Have I gone there, I would have died. शायद मैं वहां गया होता तो मेरी मृत्यु हो गई होती। God stopped me. परमेश्वर ने मुझे रोक लिया। In John's life, he said, there was a petrol in my car. I could have gone there. All of a sudden, something happened to my car. और एक पेट्रोलियम की जगह थी जहाँ मैं जा रहा था, अगर मैं वहां जाता शायद मेरी मृत्यु हो गई होती। But God showed him, have I gone there, I would have met with an accident. और परमेश्वर ने उसे दिखाया अगर मैं वहां जाता तो मैं शायद एक हादसे से मेरी मुलाकात And होती। every incident God showed him. और हर एक चीज परमेश्वर ने उसे दिखाई। But you know what did he say to John? पर आपको पता है उसने जॉन से क्या बोला? God said, you are not special. परमेश्वर ने बोला तुम कुछ खास नहीं हो। I do this for my sons all the time. मैं अपने संतानों के लिए हर वक्त करता हूँ। Do not allow them to go places. मैं अनुमति नहीं देता कि वो कुछ जगहों पर जाएं। Their car gets stopped. उनकी गाड़ी रुक जाती है। Their protection is me. उनकी सुरक्षा मैं हूँ। But my people don't acknowledge me. पर मेरे लोग इस बात को मानते नहीं हैं। My people don't know also that it is God who has done it. शायद मेरे लोग ये भी ना जानते हो कि ये परमेश्वर है जिसने मुझे बचाया। Are you breathing? क्या आप सांस ले रहे हैं? Are you alive? क्या आप जीवित हैं? Do you have food at table? क्या आपके घर में खाना है? It's God's goodness. वो परमेश्वर की भलाई है। You are alive because of God. आप जीवित हैं सिर्फ परमेश्वर की वजह से। He is always doing good things. वो हमेशा अच्छी चीजें कर रहा होता If है। you have blamed for God, blame to God अगर आपने परमेश्वर पर दोष लगाया है for every bad things. हर एक बुरी चीज के लिए, Today you can say,
I'm sorry, God. आज आप परमेश्वर से कह सकते हैं परमेश्वर मुझे माफ करें। In this parable, sorry, we don't have time, इस दृष्टांत में अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी हमारे पास समय नहीं है, but we will look at it in another time. हम अगली बार उसे देखेंगे। We know who is the source of evil. हमें पता है कि दुष्टता का स्रोत कौन है। See, all this while, people began to blame God, saying, God is the source of doing all these things. और इस समय तक परमेश्वर को लोग दोष देते थे कि परमेश्वर की तरफ से गलत चीजें आती हैं। The basics for us as Christian is to see God's character. और जो हमारे लिए बुनियादी चीज है एक मसीह होने के नाते कि हम परमेश्वर के चरित्र को देखें। If you look at Adam and Eve, God always made good things. अगर आप आदम और हवा को देखेंगे तो आप जानेंगे परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था। In Genesis, what does he says? और वो उत्पत्ति में क्या बोलते हैं? After making everything, what does he says? हर एक चीज को बनाने के बाद वो क्या बोलते हैं? It's good. वो कहते हैं कि अच्छा है। In fact, when he makes Adam and Eve, he says it's very good. पर जब वो आदम को बनाता है कहते हैं वो बहुत अच्छा है। He placed them in the field. उन्हें वहाँ उस जगह पे परमेश्वर ने उन्हें रखा। In this world, इस संसार में he did that. Jesus was very present and very God at the beginning. और यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित थे, वहाँ पर परमेश्वर थे उस शुरुआत से। He didn't become God only when he came on earth. वो परमेश्वर तब नहीं बने जब वो इस संसार में आए। He placed Adam and Eve. उन्होंने आदम और हवा को उस वाटिका में रखा। But what happened? पर क्या हुआ? While everyone was asleep. बाकी सब जब सो रहे थे। Sleeping there is not a negative connotation. वहाँ पे सोना कोई गलत अर्थ नहीं है उसका। Everyone after hard work goes to sleep. सब मेहनत करने के बाद सोने ही जाते हैं। In this parable, sleeping is not in a negative connotation. और यहाँ पे सोना एक नकारात्मक शब्द नहीं है। While everyone was asleep, बाकी सब जब सो रहे थे we saw what happened. हमने क्या देखा? Who came? कौन आया? An enemy. एक शत्रु। Whose enemy? कौन है वो शत्रु? What did it says in the scripture? वचन में क्या कहता है? Whose enemy? सर्प। It says his enemy. वो कहता है उसका शत्रु। Do you know whose enemy devil is? आपको पता है किसका शत्रु है शैतान? God's enemy. वो परमेश्वर का शत्रु है। And if he is God's enemy, अगर वो परमेश्वर का शत्रु है, he hates everything God loves. वो हर एक चीज से नफरत करता है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। Directly he is the enemy for his children. और वो वैसे ही उनका शत्रु बन जाता है जो उसकी संतानें हैं। The second basic truth you and I and Christians need to know that. और एक दूसरा सत्य जो आप और मैं विश्वासियों को जानने की जरूरत है। Because if you did not pay attention in your life, right now enemy is ruining your life. अगर आप इस समय ध्यान नहीं देंगे उस बात को तो शायद इस समय शत्रु आपके जीवन को खराब कर रहा And हो। if you know this, well done. But you need to be keep on knowing this. How does he works? The schemes of the enemy. अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, पर आपको हमेशा वो याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर जो शत्रु है वो कैसी चाल चलता है। That is the second basic truth. और वो है दूसरा बुनियादी सत्य। Third truth और जो तीसरा सत्य है is the result of the parable. और वो है उस दृष्टांत का जो परिणाम था। What does enemy want? शत्रु क्या चाहता है? Do you think what does he want? आपको पता है क्या चाहता है वो? He wants company at the end of this age. वो चाहता है कि अंत में उसके पास भी संगति हो। He wants that he has his sons. और वो चाहता है कि जो उसने अपनी संतानें भेजी हैं So that he can turn the sons of God to follow him. कि वो परमेश्वर की संतानों को उसके पीछे चलाए। Do you know the weed that is sown by the enemy looks like this? और आपको पता है जो बीज शत्रु ने बोया था वो ऐसा दिखता है। It looks very much similar like wheat. और वो बिल्कुल गेहूं की जैसा दिखता है। You know the word weed, we read weed, but actual word there is darnel. Darnel. और हम वीड शब्द पढ़ते हैं पर वहाँ पे असली शब्द का है वो है डार्नेल। An enemy comes and showed darnel. और जो शत्रु है वो आके डार्नेल बोता है। Darnel is the weed that looks exact like wheat but is not wheat. और जो डार्नेल है वो बिल्कुल गेहूं के जैसा दिखता है पर वो गेहूं होता नहीं है। This is the third important truth. और ये है तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य। That you wouldn't even realize that things happening in your life, it will almost looks like very good but not good. और ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको लगेगी बहुत अच्छी है पर अच्छी ना हो। That the devil is sowing the traps for you or deceiving you.
कि जो शत्रु है वो आपके लिए जाल बिछा रहा है, आपको धोखे में डाल रहा है। That sin that's so enticing and looks so good is not good. जो चीज़ बहुत ही अच्छी दिख रही है देखने में, शायद वो अच्छी ना हो। So you can imagine the wheat growing amongst the darnel. और आप सोच सकते हैं गेहूं भी उग रहा है उस डांडल के बीच में। What is happening there? वहाँ क्या हो रहा है? Wheat's energy is sourced, removed out by darnel. और जो गेहूं का जो ऊर्जा है वो सारी खींच ली जाती है डांडल के द्वारा। Wheat is growing seeing darnel. और अब गेहूं डांडल को देखते हुए उग रहा है। Has it not been like this for us? क्या ऐसा ही नहीं होता हमारे लिए Where the church is comparing to the world. कि जहाँ कलीसिया अपने आप की तुलना संसार से कर रही है, Where the church should become the church and the world should compare themselves with church. जहाँ कलीसिया को कलीसिया जैसा बनना चाहिए और संसार को उनसे अपनी तुलना करनी चाहिए। Are you following? क्या आप सुन रहे हैं? But what happens? पर क्या होता है? The church believers, Christians begin to follow something of that world. और जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ संसार की बात के पीछे चलते हैं। This is also basic truth और ये एक बुनियादी सत्य है that we are believers. कि हम विश्वासी हैं You know, we do certain things certain ways. और हम कुछ चीजें कुछ तरीकों से करते हैं, Though the world, it doesn't make sense to them. और शायद संसार के लिए वो समझे ना कि क्या अर्थ है उसका। But Christians will influence at the right time. They will grow to be wheat and the others will grow to become darnel. और विश्वासियों का प्रभाव है ऐसा कि एक समय पे वो गेहूं की तरह उगेंगे और जो संसार है वो डांडल की तरह उगेगा। You know, darnel is the most deadliest seed. और आपको पता है बहुत ही खतरनाक बीज होता है डांडल का। There are machineries now that removes these weeds. और बहुत सारी ऐसे जो मशीनें हैं जो निकालती हैं इन सारे जंगली बीजों को। If you don't pay attention, अगर आप ध्यान नहीं देते, you are called to be wheat, आपको बुलाया गया है गेहूं होने के लिए, but the enemy comes and sow things. पर शत्रु आके कुछ बीज बोता है। That's why we need discipleship. और इसलिए हमें चेला बनने की जरूरत है, We need to see. हमें देखने की जरूरत है। Though this parable of Jesus was focusing on eschatological end, और शायद परमेश्वर का ये दृष्टांत वो अंत जो आने वाला है उसके बारे में बात कर रहा हो, did not cover the process that Christ is doing. और शायद उस प्रक्रिया को हमने ना देखा हो जो मसीह कर रहा है। Do you notice he said, let it live both. और वो कहता है कि वो दोनों को साथ में उगने दो, Let wheat grow and darnel also grow. कि गेहूं को भी उगने दो और डांडल को भी उगने दो। Because in this time, God is interested even turning darnels into wheat. Hallelujah. क्योंकि इस समय पे परमेश्वर दिलचस्पी रखता है कि वो उस जंगली बीजों को भी गेहूं का बीज बना सके, Which is only God can do. और ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you had only deadly things happening in your life and God turned it around and become the source of life? और आप में से कितने हैं जिसके जीवन में सिर्फ मृत्यु वाली चीजें हो रही थी पर परमेश्वर ने उसे पलटकर जीवन का स्रोत बना You दिया। were only killing yourself and killing others. आप सिर्फ अपने आप को मार रहे थे और आप दूसरों को मार रहे थे, But God saved you. पर परमेश्वर ने आपको बचा लिया। 1 Colossians chapter 1:13 took place to you. 1 कलीसियों 1:13 आपके साथ हुआ। You were sons of the evil one. आप उस शत्रु के संतान थे, Christ brought you to his light. और यीशु मसीह आपको उस ज्योति में लेकर आया। Have you noticed righteous will shine like sun? वो कहता है कि जो धर्मी लोग हैं वो सूरज के समान प्रकाशित Have you होंगे। ever seen wheat's farm, the खेती of wheat? क्या आपने कभी गेहूं की खेती देखी है? It shines. वो दूर से ही लहलाती है। God has brought us out of darkness. परमेश्वर हमें उस अंधकार से निकाल How कर लाया। did Jesus brought us out of और darkness? कैसे यीशु हमें उस अंधकार से निकाल कर लाया? Is being the Son of Man. कि हम मनुष्य के पुत्र के द्वारा, That he did not only sow them on the field, but he also came down on earth to save mankind. वो सिर्फ उन्हें बीज बोने नहीं आया बल्कि वो इस संसार में आया कि वो बचा सके मनुष्य जाति को। That he lived a life of holiness and died on the cross for you. और उसने वो धर्मी जीवन जिया और उस क्रूस पर अपने आप को दिया। That through his cross, you and I have an access to God. और उसके क्रूस के द्वारा आप और मेरे पास परमेश्वर से एक संपर्क है। That whoever believes in Jesus will turn from darnel
into wheat. कि जो भी मसीह पर विश्वास रहेगा वो जंगली बीज उसे डालने से गेहूं बन जाएगा। You cannot become like that on your own strength, by the और way. आप अपनी सामर्थ्य में ऐसे नहीं बन सकते You cannot become holy over this one day period. और एक दिन के अंदर आप पवित्र नहीं बन सकते। But God began this process. पर परमेश्वर ने वो प्रक्रिया चालू की है It's only God who was doing, saying, let it grow, it's fine. और वही वो परमेश्वर ने कहा कि उसे उगने दो, कोई बात नहीं। Have you noticed one more truth, basic truth? क्या आपने एक और बुनियादी सत्य देखा? God is also sovereign over everything. परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर प्रभुता रखता है। I could almost see devil saying, ha ha ha, Daniel, let it grow and wheat also grow. और मैं सोच सकता हूँ शत्रु हंस रहा होगा कि अच्छा हाँ, गेहूं भी बढ़ने दो और जंगली बीज भी बढ़ने दो। But God was sovereign. पर परमेश्वर संप्रभुता रखता He था। said, that Daniel called Pankaj, I will turn him into wheat. तो उसने कहा कि वो जंगली बीज जो पंकज था मैं उसे गेहूं बना दूंगा। That Daniel Abhishek Sukh, I will turn him into wheat. वो जंगली बीज अभिषेक सुख मैं उसे गेहूं बना दूंगा। Isn't God good? क्या परमेश्वर अच्छा नहीं? Isn't God always doing good? क्या परमेश्वर हमेशा अच्छा नहीं करता? That Daniel Aditya, I will turn him into good. वो जंगली बीज आदित्य मैं उसे गेहूं में बदल I'll दूंगा। make him shine like the sun. मैं उसे सूरज की तरह प्रकाशित करूंगा। Can you believe it? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं? That whatever enemy meant for evil, God turns it for good. हर एक चीज जो शत्रु ने गलत के लिए रखी परमेश्वर ने उसे भले के लिए बदल दिया। We only have these three basic truths. अगर ये तीन बुनियादी सत्य आपके पास हैं, Sorry, 4 now. अब 4 हो गए हैं। God is always doing good. परमेश्वर हमेशा अच्छा कर रहा है, He's always doing good. वो हमेशा अच्छा करता है। There is an enemy. एक शत्रु है, We know to know his schemes of the enemy. हमें उसकी चालों को समझने की जरूरत है। And in midst of enemy doing harm, God will turn it for good. जब शत्रु किसी के साथ गलत कर रहा होता है परमेश्वर उसे अच्छे के लिए If you बदल know देता है। these basic truth, you will live life from above. अगर आप ये 4 बुनियादी सत्य को समझ गए तो आप जीवन ऊपर से जिएंगे। Nothing will stop you in this world. कोई चीज आपको रोक नहीं सकेगी इस संसार में। Can you believe a creation becoming the enemy of the creator? क्या आप सोच सकते हैं कि बनाई हुई सृष्टि उस बनाने वाले की शत्रु बन सकती है? That's why we were saying, who is your rival? तभी हमने कहा कि उसका शत्रु है कौन? Someone was singing in Hindi that about Mahima. और कोई हिंदी में महिमा के बारे में गा रहा था। I said, do you even know what will be the Mahima of Jesus when he comes? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगी महिमा परमेश्वर की जब वो Everyone आएगा? will be fearful first of all. हर एक व्यक्ति थरथरा रहा होगा भय से। There is not even equal to God. कोई परमेश्वर के बराबर तक नहीं है। Devil is just fool to put himself against, equality of God. शत्रु सिर्फ एक मूर्ख है जो अपने आप को परमेश्वर के तुलना में बराबर समझता है। Do you even know whom you are following? क्या आपको पता भी है आप किसके पीछे चल रहे हैं? You're following Christ. आप मसीह के पीछे चल रहे हैं। You have nothing to fear. आपके पास कुछ नहीं है डरने को। You may be living in fear, oh, Satan will come after me. आप शायद इस डर में चल रहे हो कि शैतान मेरे पीछे पड़ेगा। No, नहीं, that fear went out long time ago for me. और मेरे लिए वो भय बहुत पहले ही जा चुका है। Oh, if I did this, Satan will be after me. अगर मैं ऐसा करूंगा तो शत्रु मेरे पीछे आएगा। No. नहीं, Do you know even who is with you? आपको पता भी है आपके साथ कौन है। We don't have time, but there is so much more in this thing. और शायद हमारे पास समय नहीं है पर बहुत सारी बातें हैं यहाँ जो मैं कहना But as we चाहता हूँ। go along in this series, I am putting basic truths in you. पर हम जैसे ही श्रृंखला में बढ़ते हैं वो बुनियादी सत्य हम आपके अंदर डाल रहे You हैं। can hear them and go on Sunday and say, oh, that was a great message. शायद आप उसे सुन के घर जाके सोच सकते हैं कि हाँ ये अच्छा संदेश था, Or you apply it in your life. या आप उसको उपयोग में लाएं अपने जीवन के If you अंदर। have not received Jesus Christ as Lord and Savior, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकारा नहीं है, you can receive today आज आप कर सकते हैं। and turn from Daniel into wheat. आप उस जाड़नेल उस जंगली बीज से गेहूं बन सकते हैं। That your end result, eschatological end result, will be not in fire but in the house of God. और आपका जो आने वाला अंत है जो लिखा गया था वो आग में नहीं होगा बल्कि एक सूरज के समान प्रकाशित होगा। You and I cannot escape that fire. और आप और मैं उस आग से बच नहीं सकते। Only Christ can help us escape. सिर्फ मसीह हमें उससे बचा सकता है। Whoever is in Christ
will be in his house. जो मसीह में है वो उसके घर में होगा।